آسٹریلیا میں سڈنی کے ساحل کو خون میں نہلا دیا گیا۔ فائرنگ سے 16 افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 40 افراد زخمی۔ حملہ یہودیوں کے مذہبی تہوار کی تقریب کے دوران ہوا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک مشتبہ حملہ آور ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ حملہ آور کو ایک مسلمان نے پکڑا۔ سڈنی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں تیسرا حملہ آور بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ ایک مشتبہ شخص زیر حراست۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق تقریب میں 2000 سے زائد افراد موجود تھے۔ حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ مشتبہ حملہ آور کا نام نوید اکرم ہے۔ نوید اکرم سڈنی کے جنوب مغربی علاقے کا رہائشی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے نوید کے گھر پر چھاپا بھی مارا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا، کہا یہودی آسٹریلوی باشندوں پر حملہ ہر آسٹریلوی پر حملہ ہے۔ ہماری ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ آسٹریلیا میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اپنی جان پر کھیل کر حملہ آور کو پکڑنے والا مسلمان احمد احمد آسٹریلوی عوام کا ہیرو بن گیا۔ احمد کے رشتہ دار کا کہنا ہے کہ احمد کو بھی 2 گولیاں لگیں، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور حملہ آور کو غیر مسلح کر کے قابو کیا۔ احمد زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج، حالت خطرے سے باہر۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا احمد کو خراج تحسین۔ ادھر بھارتی، اسرائیلی اور افغانی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا۔ آسٹریلیا حملے سے منسلک دہشت گرد کا تعلق پاکستان سے بتانے لگے۔ آسٹریلوی میڈیا نے حملہ آور کو نوید اکرم کے نام سے شناخت کیا، لیکن بھارتی، اسرائیلی اور افغانی میڈیا نیو ساؤتھ ویلز کے شیخ نوید کی تصاویر دکھا کر فیک نیوز پھیلانے لگا۔ شیخ نوید کا کہنا ہے کہ اس کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سڈنی میں حملہ آور کو پکڑنے والے شخص کی بہادری کی تعریف۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا سڈنی حملہ خوفناک، حملہ آور کو روکنے والا شخص بہادر اور قابل احترام ہے۔ اس بہادر شخص نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی۔ امریکی صدر نے شام میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے سے متعلق کہا کہ شام میں امریکی فوجیوں پر حملہ شامی حکومت نے نہیں، داعش نے کیا تھا۔ امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سڈنی واقعے کی شدید مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ واقعے پر آسٹریلیا سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی آسٹریلیا میں دہشت گردی کی مذمت۔ متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی سڈنی واقعے کی مذمت۔ برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم کی بھی واقعے کی مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ پرتشدد واقعات سے دلی طور پر غمزدہ ہیں۔ ہماری دعائیں متاثرین اور آسٹریلوی عوام کے ساتھ ہیں۔ یورپی یونین، ترکی، قطر اور ایران نے بھی واقعے کی مذمت کر دی۔ برطانیہ کے شاہ چارلز کی سڈنی واقعے کی مذمت۔ ارض پاک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں۔ بھارتی پراکسی فتنہ خارج سے تعلق رکھنے والے 13 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق ضلع محمد میں خوارج کی موجودگی پر سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج مارے گئے۔ ضلع بنو میں دوسری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پی ٹی آئی دور میں ٹرائیکا تھا، تمام معاملہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ، فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی چلا رہے تھے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کوئی افسر جھوٹا مقدمہ بنائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ایک ملاقات کے دوران سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے فیض حمید سے کہا کہ رانا بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید ایک پیج پر تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے ہر جرم میں فیض حمید کا اہم کردار تھا۔ بانی اور تحریک انصاف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مشن اداروں اور پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ رانا مشہود کہتے ہیں کہ فیض حمید کو سزا پاکستان میں نئے باب کا آغاز ہے، 9 مئی کرنے والوں کا بھی کڑا احتساب کرنا چاہیے۔
9 मई बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का जॉइंट वेंचर था। उस रोज़ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 9 मई को बानी पीटीआई अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। सियालकोट में क्रिश्चियन कम्यूनिटी की तकरीब से खिताब में वज़ीर दिफा बोले कि मार्का हक में पाक फ़ौज ने भारत पर तारीखी फ़तह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान ने वतन की हिफाजत की। पाक फ़ौज की फ़तह तारीख के सुनहरे बाब में लिखी गई है। इस जंग में दुनिया में हमने एक मुनफरिद मकाम पाया है। आने वाला दौर तरक्की का होगा। पंजाब में हजारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपने सूबे में करप्शन देखें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कोहाट में जलसे से खिताब। कहा कि मरियम नवाज साहिबा मुझे मशवरा ना दें, अपने सूबे का ख्याल करें। वफाकी हुकूमत ने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। हमें मशवरा देने वाले मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। बानी पीटीआई और उनकी बहनों को जाली मुकदमात में फंसाया गया। NFC में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में 16,000 नौजवानों को मेरिट पर रोजगार दिया है। अगर एक भी भर्ती गैर कानूनी निकली तो इस्तीफा दे दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने सुहेल आफरीदी को चंद दिन का वज़ीर आला करार दे दिया। वज़ीर आला KP के खिताब पर रद्द-ए-अमल में इख्तियार वली ने कहा कि जो लोग पाक फ़ौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं, कौम उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। आपका राज ख़त्म हो चुका है। अब अवामी हुकूमत आएगी, हम आपका हर महाज पर सामना करेंगे। पीटीआई ने फैज़ हमीद से भरपूर फ़ायदे उठाए। जो लोग फैज़याब हुए उन पर आसमान टूटेगा। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का कहना है कि फैज़ हमीद की वजह से मुल्क और इदारों को नुकसान पहुंचा। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सब जमातें एक टेबल पर बैठें। तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। इमरान इस्माइल बोले, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एहतसाब का अमल अपने इदारे में से शुरू किया। पाक फौज ने इंतहाई ताकतवर शख्स को एहतसाबी अमल से गुजारा। ये अमल यहाँ रुकने वाला नहीं, फायदा उठाने वालों और सहूलतकारों का भी एहतसाब होगा। न्यूयॉर्क में पहली बार PSL का रोड शो। चेयरमैन PCB, कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा समेत दीगर क्रिकेटर्स की शिरकत। रोड शोज़ का मकसद 6 जनवरी को 2 नई फ्रेंचाइजीज़ की नीलामी में आलमी सरमायाकारी को राग़िब करना है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। PSL में नौजवान टैलेंट को सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। PSL में सरमायाकारी करने वालों को खातिर खा फ़ायदा होता है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग आलमी सतह पर ब्रांड बनकर उभर रही है। वसीम अकरम बोले कि PSL में तमाम खिलाड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। PSL मकामी टैलेंट को मौका देती है। रमीज़ राजा ने कहा कि PSL से पाकिस्तान क्रिकेट के खेल को फ़रोग़ मिल रहा है। ये तमाम पाकिस्तानियों और क्रिकेटर्स के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। IMF प्रोग्राम में कोई नई शराइत शामिल नहीं। तयशुदा एजेंडा मरहलावार नाफिज किया जा रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिये के मुताबिक हुकूमत ने अपनी मुजव्वज़ा इस्लाहाती पॉलिसियाँ IMF को दी हैं। इन पॉलिसियों को मरहलावार IMF का हिस्सा बनाया जाता है। ये इस्लाहात मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। इनमें शामिल मुतअद्दिद इस्लाहात पर हुकूमत पहले ही अमल दरामद कर रही है। हर IMF जायज़े में नए इक़दामात शामिल करना मामूल का हिस्सा है ताकि तयशुदा हतमी अहदाफ बतदरीज हासिल किए जा सकें। शिकारपुर के हल्का PS9 गढ़ी यासीन का ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के नाम गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज खान दुरानी कामयाब करार पाए। आगा शहबाज खान दुरानी ने 73,554 वोट हासिल किए। उनके मुकाबले में JUI के उम्मीदवार सैयद रुशदुल्ला शाह सिर्फ 9,412 वोट हासिल कर सके।
मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। एनडीएमए ने बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान है। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली और मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होगा। मुमकिना मौसमी सूरत हाल के बायस धुंध की शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्के है। उधर सावात की वादी कलाम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से हर मंजर निखर गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक की शिद्दत बरकरार। लाहौर समेत दीगर शहरों में फजाई आलूदगी बढ़ गई। मोटरवे M3 और 4 धुंध की वजह से बंद। ईरान दोबारा जंग की सूरत में एक साथ 2000 मिसाइल दाग सकता है। इस्राएली फौजी हुकाम की पार्लियामेंट में ब्रीफिंग। कहा, ईरान 12 रोज़ा जंग के बाद तेजी से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मुनज़्ज़म कर रहा है। सिर्फ 6 माह में मिसाइल्स का बड़ा ज़ख़ीरा बना चुका। खारान में कामयाब ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द SHO सिटी खारान कासिम के कत्ल में मुलव्विस थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात और DIG CTD की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि रवां साल बलूचिस्तान में 78,000 सिक्योरिटी ऑपरेशंस किए गए। इन ऑपरेशंस में 700 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 202 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। DIG CTD बोले, शहीद SHO कासिम ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्द जहांगीर का भाई मेरल नोकुंडी FC हेडक्वार्टर्स हमले में मुलव्विस था। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफ़ी बयान भी चलाया गया। दहशतगर्द ने कहा कि उन्हें SHO को अगवा करने का हुक्म दिया गया था। SHO को अगवा करने से पहले मालूमात हासिल की। यूक्रेन में जंग बंदी के लिए जर्मनी में मुज़ाकरात का आगाज। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी नुमाइंदों और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातें। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी सदर जंग के खात्मे के लिए नेटो में शमूलियत के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए। यूक्रेन का मगरबी ममालिक की जानिब से मजबूत सिक्योरिटी जमानतें देने का मुतालबा। नेटो रुकनियत के बजाय सिक्योरिटी जमानतें रूसी जारहियत का रास्ता रोकने में अहम हो सकती हैं। हमास ने सीनियर कमांडर राद साद की शहादत की तस्दीक कर दी। गुज़श्ता रोज इसराइल ने राद साद को शहीद करने का दावा किया था। जंग बंदी माहदे के बाद ये किसी भी सीनियर हमास रहनुमा की पहली हलाकत है। हमास सरबराह खलील अल हया का कहना है कि इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अमरीका और दीगर सालिस जंग बंदी माहदे पर अमल दरामद करवाएं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों में इजाफा। दोनों ममालिक की झड़पों में 26 अफराद हलाक, 75 जख्मी हो चुके। झड़पों से दोनों अतराफ के 5 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए। थाई फौज का कहना है कि उनके पास जंग बंदी का कोई मंसूबा नहीं। उधर कंबोडिया ने थाईलैंड पर जाली खबरें फैलाने का इल्जाम लगा दिया। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम सरहदी गुजरगाहें बंद होने से कई लोग फंस गए। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गया। फायरिंग के वक्त यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात जारी थे। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। रवां साल अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग के 70 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से अमवात 1000 से बढ़ गईं। जजीरा सुमात्रा के 3 सूबों में 1003 अफराद लुकमाए अजल बने। 218 अब भी लापता हैं। हालिया हफ्तों में शदीद बारिशों ने एशियाई ममालिक में तबाही मचाई थी। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम में मजमूई हलाकतें 2000 तक पहुंच गईं। लाहौर में DSP की बीवी और बेटी के अगवा का ड्रॉप सीन। DSP उस्मान हैदर ही कातिल निकले। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल किया। दोनों के अगवा की FIR थाना बड़की में दर्ज कराई।
मुलजिम का दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ, बेटी की लाश काहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद हुई। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में पेशरफ्त, कत्ल में मुलविस मफरूर मुलजिम शमरेज पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। उसी दौरान मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में शमरेज फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया।